Okay, hello everybody, good evening. Okay, so guys, am I audible properly to everyone? Okay, good. Okay, so guys, we are studying about the lesson number 6. I think we have completed it, right? That is the population of Brazil and India. So there are some characteristics of the population. Okay, yes, we have completed it. I will share my screen and just tell me if it is visible or not. Can you see the screen? Okay, good. Yes, so here is the life expectancy. Okay, all right. So we have completed it. Let us right. The exercise, posting the exercise is remaining. I think I will upload it, and you have to complete it and upload it again with the answers. Right. So today we will start the lesson number 7. Okay, it's the new lesson, and I hope you guys are ready for it. Okay, you have uploaded, Maitreya. That's good. What about other students? Okay, so it means I have uploaded it. Exercise. Okay, other students, where are you gonna upload it with the answers? Am I audible? Okay. So I have asked you some question, right? Okay. So I hadn't finished it, said I had uploaded. Will a day after tomorrow. Okay, all right. So work on that and as soon as it completes, upload it. Okay. So here we go for the new chapter. आज हम नया chapter शुरू करेंगे. तो नया chapter का नाम क्या है? What is the name? Human settlements. Okay. So is the textbook visible to everyone? That is lesson number 7. Human settlements. Human settlements मतलब जहाँ पर जो पीपल है, पब्लिक है, वो सेटल हो गई है, वहां पर वो रह रही है. ओके, गुड. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट. ओके, सी examples of settlement pattern in India. Okay, examples of settlement patterns in India. So here with figure 7.1a and 7.1b, two figures are here, you can see.
So basically these two photos or figures, these are the photographs which are taken from higher altitude, very high altitude, maybe from the satellite. Okay, so based upon through these two figures, you have asked some questions. Let's see. See here. Study the two types of settlement patterns in India given in figure 7.1a and 7.2b. It is 7.11b होना चाहिए ना. Okay. Okay. So there are ये जो दो फोटोग्राफ्स फिगर्स आपको दी गए हैं, उसको स्टडी करके आपको बताना है कि ये सेटलमेंट्स इंडिया में किस प्रकार के सेटलमेंट है. बेस्ड अपॉन दैट देयर आर सम क्वेश्चंस. देखिए क्वेश्चंस क्या है. आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सेटलमेंट. ओके, सेटलमेंट्स के अलग अलग टाइप्स है, वो हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन आपको एक थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए इसके लिए क्वेश्चंस पूछे गए ताकि आप सोच विचार कर सके, आप उस पर थिंकिंग करना शुरू कर सके. राइट. Second question is which one of is nucleated settlement and why? Okay, what they are saying, which one is a nucleated. So guys, I hope you all of you know that what is nucleus. Nucleus is a center point, we can say. Okay, so from these two figures you have to tell me. Okay, so which one is a nucleated settlement? From the name nucleus, this name is given that nucleated settlement. And why? ओके, इसमें से कौन सी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है फिगर, ये दोनों में से, और क्यों है. ओके, आपको ये बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन इज अ डिस्पर्स्ड सेटलमेंट. व्हाट कुड इज द रीजन बिहाइंड इट. जिस प्रकार न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट एक टाइप है, उसके अपोजिट डिस्पर्स है. डिस्पर्स का मतलब क्या है, लोग दूर दूर पर बिखरे हैं. ओके, वो बिखर गए हैं, पसरलेले आहेत मराठीमध्ये. ओके, these are not nucleated. So what can be the reason behind this? Can you guess in which regions are these settlements located in India? तो इंडिया में ये जो सेटलमेंट्स आप देख रहे हैं वो किस रीजन में लोकेटेड है. ओके, सो ये सब क्वेश्चन से आपको पूछे गए हैं which are based upon these two figures. तो हम आगे देखेंगे. ओके, in the last year, I think in 9th standard, you have studied about the types of settlements, right? There are different type of settlements and you have studied that. So I think you can answer some questions of this, right? Which type of settlements are these? Which one is nucleated? So basically these two are, first one is a nucleated, second one is, we can say, dispersed. And what can be the reason behind this? If the resources are located at one place only, then people try to concentrate at one place, try to nucleate one place. मतलब जो पानी की सुविधा है वो अगर किसी एक जगह पे होगी तो लोग क्या करेंगे, उसी जगह के आसपास रहने लगेंगे, वहां पर वो सेटल हो जाएंगे. उसके अपोजिट है डिस्पर्स टाइप ऑफ सेटलमेंट. ओके, तो इसके बारे में और हम आगे पढ़ेंगे, जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस देखेंगे उसके बारे में. सो एम आई ऑडिबल? Yes, Nitu ji. Yes, Nitu Rajpurohit. Yudma settlements means people live in a group, right? They are living in a group or they can be dispersed also. Some people are living at some place, another home is 1 kilometer at distance. This can be the case, okay? And it depends on the resources available at one place. अभी देखिए अगला क्या है, जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस. भौगोलिक कारण क्या है इसके पीछे हम देखेंगे. इन इंडिया we can see a variety of settlement patterns given the variety of climatic factors, availability of the water, slope of the land and level of development. Okay, तो इसका अर्थ क्या है, we see a variety of settlement patterns in India. तो इंडिया में हम जो सेटलमेंट्स के पैटर्न है बहुत देखते हैं. ओके, अलग अलग प्रकार के सेटलमेंट्स के पैटर्न इंडिया में है. अब ये पैटर्न किस चीज पर डिपेंड है, ये पैटर्न डिपेंड है variety of climatic factors.
जो वातावरण है जो ओके मराठी मध्ये त्याला हवामान म्हणतो आपण वातावरण जो जैसा रहता है क्लाइमेट जैसा रहता है वेदर उसके अकॉर्डिंगली अगर किसी जगह पे फेवरेबल वेदर है तो पीपल वहां पर रहेंगे अगर किसी जगह पे अनफेवरेबल है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मुश्किल है वहां पर रहना सो उस वक्त क्या होगा लोग वहां पर ज्यादा नहीं रहेंगे ओके also availability of the water this is a very important one if at some places water availability is very much then people will gather over here but if in desert like situation take the example of desert we know water availability is very low in such a places so people tend to go away from such places मतलब लोग वहां पर रहना नहीं चाहते वहां पर रहना मुश्किल होता है और वो जगह पे वो जगह से निकलकर जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी होंगी वहां पर जाते रहते ओके ऑल्सो स्लोप ऑफ द लैंड मतलब जो उतार होता है जो ढलान होती है किसी चीज में भी हिली रीजन होगा अगर कोई कोई प्लेन एरिया है तो प्लेन एरिया में ज्यादातर लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर जो प्रॉब्लम से ज्यादा वो फेस नहीं करनी पड़ती ओके आने जाने की यहाँ घूमने की रास्ता वगैरह एक्सेट्रा मगर अगर किसी प्लेस पे स्लोप बहुत ज्यादा है ढलान है कोई चट्टान है माउंटेन्स है तो उस जगह पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे ऑल्सो लेवल ऑफ द डेवलपमेंट ओके जिस एरिया में ऑलरेडी डेवलपमेंट चल रही है और बहुत ज्यादा है तो पीपल जनरली वहां पर जाना चाहते हैं मतलब सिटी के लिए लोग जो जाते हैं गांव से निकलकर वो इसीलिए जाते हैं कि वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है और वहां पर अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा है नौकरी की कुछ कमाने की बिजनेस की ओके सो दीज आर सम फैक्टर्स ऑन विच settlements are depend okay which type of settlement will be there तो इंडिया में बहुत ज्यादा प्रकार के सेटलमेंट्स आपको दिखाई पड़ते हैं क्योंकि भारत में अलग अलग प्रकार का एनवायरनमेंट है अलग अलग प्रकार का ज्योग्राफिकल कंडीशन है वाटर की प्रॉब्लम कुछ जगह पर है कुछ जगह पे बहुत ज्यादा है वाटर तो उसके मुताबिक इंडिया में भी सेटलमेंट्स के पैटर्न हमें दिखाई देते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड थ्रू आउट द प्लेटो रीजन ऑफ नर्मदा वैली पैडी लैंड्स इन बिहार उत्तर प्रदेश okay Vindhya plateau and several other cultivated parts of India तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स का मतलब क्या है एक जगह पे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं वो वहां पर सेटल हो जाते हैं वो बहुत सालों से वहां पर रहने लगते हैं ओके सो न्यूक्लिएटेड इट इज लाइक ए न्यूक्लियस एट वन पॉइंट एट वन रीजन एट वन एरिया तो ये इंडिया में कहाँ कहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं तो इंडिया में ये कहाँ पर दिखाई पड़ते हैं प्लेटो रीजन ऑफ नर्मदा वैली मतलब जो नर्मदा रिवर है नर्मदा नदी है ओके उस नदी का जो प्लेटो रीजन है मतलब वो प्लेन एरिया है उसे मराठी में पठार कहते हैं ओके आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड इन हिंदी परंतु जो पठारी भाग असतो सपाट प्रदेश असतो ओके सो द नर्मदा रिवर्स प्लेटो रीजन इन दैट एरिया न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स इज फाउंड ऑल्सो पैडी लैंड्स इन द बिहार बिहार में जो पैडी लैंड्स होती है तो वहां पर वो दिखाई देता है हमें न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट दिखाई देती है उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है प्लेन एरिया है हमको पता है राइट विंध्या प्लेटू अभी विंध्या प्लेटू मतलब विंध्या इज अ माउंटेन रेंज वो माउंटेन रेंज पे भी उसके आसपास प्लेटू है एक प्रकार का वो प्लेन एरिया है वहां पर भी लोग रहते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स के एंड सेवरल अदर कल्टिवेटेड पार्ट्स ऑफ द इंडिया मतलब जहां पर खेती करने लायक जमीन होती है कुछ होता है तो उस जगह पे हमें अक्सर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स दिखती है ऑल राइट अभी देखेंगे ऑन द अदर हैंड ओके दूसरी बाजू में क्या होता है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन ट्राइबल पार्ट्स कवरिंग सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया ईस्टर्न एंड साउदर्न राजस्थान हिमालयन स्लोप्स एंड लैंड विथ dissected and uneven topography देखिए न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स में मतलब वहां पर कुछ खेती बाड़ी होती है वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है डेवलपमेंट होती है उसके अलावा इसके अलावा वहां पर क्या होता है उस जगह पे
वाटर की अवेलेबिलिटी और बाकी चीजें होती, इसलिए लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन डिस्पर्स उसके अपोजिट है, मतलब लोग वहां पर डिस्पर्स हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर दूर, बहुत दूर दूर रहते हैं। तो ये किस रीजन में इंडिया के रहते हैं? देखिए, ट्राइबल पार्ट्स, ट्राइबल पार्ट्स कवरिंग सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। हमारा इंडिया जो है उसका जो सेंट्रल पार्ट है, जो मध्य पार्ट है, मध्य प्रदेश हुआ, उसके बाद ईस्टर्न एंड साउदर्न राजस्थान, राजस्थान का पार्ट होगा, क्योंकि हमें पता है राजस्थान में क्या है, डेजर्ट है। तो उस डेजर्ट की वजह से वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, क्लाइमेट बहुत हॉट रहता है, तो रहना मुश्किल है, खेती बहुत होती नहीं है वाटर की वजह से, क्लाइमेट की वजह से। तो वहां पर लोग दूर दूर रहते हैं। ओके। उसके बाद हिमालयन स्लोप्स। अभी हमें पता है हिमालयन माउंटेन्स आर वेरी हाई अल्टीट्यूड माउंटेन्स, देर आर स्लोप, देर आर वैलीज, टोपोग्राफी इज वेरी अनइवन, कहाँ पर वैली है, कहाँ पर पिक है, कहाँ पर, ओके, इसकी वजह से स्लोप बहुत ज्यादा है। तो उस जगह पे भी हमें ये डिस्पर्स पॉपुलेशन दिखती है, मतलब लोग दूर दूर रहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं रहते। ऑलराइट, so this is about the nucleated settlements in India and dispersed settlements in India, where it actually lies. Okay. So guys, did you understand this? Okay, anybody having any doubt or issue? किसी को कोई प्रॉब्लम है, इस पे डाउट है? ओके, ओके, नाइस। अभी यहाँ पर आपको एक काम दिया गया है, देखो। आप यहाँ पर क्या है, एक टेबल दिया गया है, टेबल में क्या दिया है, एम्यूनिटी। एम्यूनिटी मतलब एक प्रकार की सर्विस, फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ओके। तो यहाँ पर क्या दिया, पेट्रोल पंप दिया गया है, थिएटर, वीकली मार्केट, प्राइम, पुलिस आउटपोस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यूनिवर्सिटी, बस सिस्टम बहुत ज्यादा दिया गया है, कॉलेज, शॉप। ओके। और दूसरे कॉलम दिया है विलेज और सिटी, मतलब ये जो एम्यूनिटीज दी गई है, जो सुविधा दी गई है, फैसिलिटीज दी गई है, ये फैसिलिटीज अगर इसमें से कोई विलेज में होगी तो उसको टिक करना है आपको, अगर इसमें से जो कुछ होगा वो अगर सिटी में होगी तो उसको टिक करना है। ओके। आई थिंक दिस इज अ वेरी आई कैन डू इट। ओके। पेट्रोल फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कुछ थोड़ा सा, पेट्रोल पंप सो अवेलेबल इन विलेज, बेसिकली विलेज में पेट्रोल पंप अवेलेबल नहीं होता। ओके, तो उसके लिए टिक नहीं होगा, लेकिन अवेलेबल इन सिटीज तो सिटी में टिक होगा। अभी थिएटर, थिएटर भी विलेजेस में नहीं होता, सिटी में होता है। वीकली मार्केट, विलेज में वीकली मार्केट हो सकता है और सिटी में भी होता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आजकल विलेजेस में भी, हमारे इंडिया में प्राइमरी हेल्थ सेंटर विलेज में भी हो रहा है और सिटीज में। उसके बाद पुलिस आउटपोस्ट, पुलिस आउटपोस्ट बहुत ज्यादातर सिटी में होता है, गांव में नहीं होता है, विलेज में नहीं होता है। आर्ट गैलरी भी सिटी में होगी, गांव में नहीं होगी। ग्राम पंचायत, वो सिटी में नहीं होगी, ग्राम पंचायत हमेशा विलेज में होगी। कभी कभी किसी, अगर कोई स्मॉल सिटी होगी तो वहां पर भी ग्राम पंचायत हो सकती है। तो ये सिंपल गेम है, आप इसको खेल सकते हैं। ओके। इज दैट टेबल इज इजी टू फिल? कैन यू डू इट ऑन योर ओन? अपने आप कर सकते हैं आप घर पे, सिंपल है बहुत। ओके। अभी हमने इंडिया का देखा कि इंडिया की ये जो पिक्चर्स देखे, दो 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 फोटोग्राफ्स हमने देखे यहाँ पर, फिगर्स देखे, तो उसमें हमने इंडिया के बारे में देखा कि इंडिया में एक न्यूक्लिएटेड पॉपुलेशन है और एक डिस्पर्स पॉपुलेशन है। उसके बाद हम अब देखेंगे ब्राजील का। यहाँ पर देखिए दो चीजें आपको दी गई है, फोटोग्राफ्स, फिगर 7.2 ए, 7.2 बी। तो पहली फिगर क्या है, द लो लैंड्स ऑफ अमेजोन रिवर। तो अमेजोन जो रिवर है उसकी लो लैंड से, मतलब वहां का जो एरिया है। फिगर 7.2 बी क्या दे, साउ पालो।
तो साओ पालो इज वन ऑफ द सिटी इन दी ब्राजील। ओके, ये ब्राजील में सिटी। ओके, तो बेस्ड अपॉन दैट आई थिंक देयर आर अगेन सम क्वेश्चंस फॉर यू और सम इंफॉर्मेशन। एग्जांपल्स ऑफ सेटलमेंट पैटर्न इन ब्राजील। अभी ये ब्राजील के पैटर्न है, हम देखेंगे। ट्राई दिस। ओके, आई विल आस्क यू समथिंग। इन द फिगर 7.2a and 7.2b, you can see images of two settlements in Brazil. Okay, again two types of settlement in Brazil. One is from Amazon River Basin in Brazil, while what the other belongs to coastal area. मतलब ब्राजील में जो कोस्टल एरिया है, एक इमेज जो है वो कोस्टल एरिया के आसपास की है, और दूसरी जो इमेज है, जो फोटो है, जो फिगर है, वो कहाँ की है? अमेजोन रिवर बेसिन जो है वहां की है। ऑब्जर्व द सेटलमेंट पैटर्न्स केयरफुली एंड नेम द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स। जैसा हमने इंडिया के लिए गया वैसा आपको इधर करना है। राइट अ कमेंट ऑन देयर डेंसिटी एंड टाइप्स। तो आपको इस पे कमेंट करना है कि डेंसिटी कितनी है अमेजोन रिवर पे एरिया में जो पीपल रहते हैं उनकी, और साओ पालो में जो पॉपुलेशन है उसकी। अभी ये तो हम आगे देखेंगे। ओके, but from this figure you can easily understand what are you able to see, which is nucleated and which is dispersed type of population. Can you tell me for the Brazil, which is nucleated? Do you think A or B, or which is dispersed? Yes, anybody among you? Okay, A is called as nucleated and B? 7B is dispersed. Okay, anybody else? ओके, सो यू हैव थिंक ऑफ इट। अब हम आगे देखेंगे एक्चुअली है क्या। ओके, आपने आंसर दिया है, लेकिन हम आगे देखेंगे एक्चुअली है क्या सिचुएशन। तो देखिए, द अर्लियर सेटलमेंट्स इन ब्राजील वर फॉर्म्ड बाय द सेटलर्स फ्रॉम यूरोप, मेनली इन द कोस्टल एरियाज। तो गाइस, हमने अगर ब्राजील का एरिया देखा, मेरे ख्याल से मैंने आपको गूगल अर्थ पे, गूगल मैप पे क्या है वो दिखाया था, ब्राजील कहाँ पर है, इंडिया कहाँ पर है। तो ब्राजील में अर्लियर टाइम्स में कौन आए थे? जो यूरोपियन पीपल है वो वहां पर आए थे, उन्होंने वहां पर इन्वेजन किया और उन्होंने वहां पर रूल किया। ये यूरोपियन जो लोग थे ना, ये यूरोपियन लोग सारी दुनिया पे वो राज कर रहे थे। ये फ्रेंच हो गए, अंग्रेज हो गए, उसके बाद वो पोर्टुगीज हो गए, डच हो गए, ये सारी दुनिया पे राज किया उन्होंने, अमेरिका पे, इंडिया पे। तो ब्राजील में भी वो आ गए थे। तो बेसिकली ब्राजील में जो सेटलमेंट है तो उन्हीं ने बसाई, बट लेकिन वो किस एरिया में उन्होंने सेटलमेंट्स बसाई? तो उन्होंने सेटलमेंट्स किया कोस्टल एरिया में, मतलब जो समुद्र का जो कोस्ट है, सी कोस्ट, वहां पर उन्होंने सेटलमेंट्स की, एंड इट इज मेनली बाय द यूरोपियन पीपल. Now the settlements have developed and are densely populated. Okay, so at the initial time or earlier time, that settlements were not so big, but now it has grown up to full size. It is developed and it is densely populated now. मतलब वहां पर बहुत ज्यादा कम एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं. Okay, the major regions of development are as follows. अभी ये जो डेवलपमेंट हो गई तो उसका एक्चुअली उसके पीछे जो कारण थे वो क्या थे, वो हम अभी देखेंगे. देखिए, although the coastal climate is hot and humid and flat land is limited due to rugged topography, the region has a good water supply and a large range of natural resources. Example, Sao Paulo. अभी देखिए, जो कोस्टल एरिया है ना ब्राजील का, वो कैसा है? क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड. ओके, किसी भी कोस्टल एरिया जब होता है तो उसका क्लाइमेट हॉट होता है और वहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हुई, मतलब वाटर के जो वेपर से
वो बहुत ज्यादा होते हैं क्लाइमेट में, उस एयर में। ओके, क्योंकि पास ही समुंदर होता है तो उसका जो वाटर वेपराइजेशन जो होता है तो वो उस एरिया में आ जाता है, वाटर में एयर में मिक्स हो जाता है। तो कोस्टल एरिया में एक्चुअली क्लाइमेट भी हॉट है, ह्यूमिड भी है, और फ्लैट लैंड इज ऑल्सो लिमिटेड, बहुत ज्यादा फ्लैट लैंड नहीं है वहां पर, प्लेन एरिया नहीं है। क्योंकि वहाँ की जो टोपोग्राफी है, मतलब वहाँ की जो फिजियोग्राफी, वो प्रॉपर नहीं है, वहां पर पिक्स है, अनइवन है। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या, अच्छी बात यह है, द गुड वाटर सप्लाई इज देयर। वहां पर पानी की जो सप्लाई है, पानी की जो सुविधा है वो बहुत अच्छी है उधर। इसी की वजह से क्लाइमेट हॉट भी है, ह्यूमिड भी है, टोपोग्राफी अच्छी भी नहीं, फिर भी लोग वहां पर रह रहे हैं, क्योंकि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लार्ज रेंज ऑफ नेचुरल रिसोर्स ऑल्सो, जो नेचुरल रिसोर्सेस है वहां पर जीने के लिए, लोगों को जो इस्तेमाल करने के लिए जो वाटर रिसोर्सेज चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, वो बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल साओ पालो। तो साओ पालो ये सिटी है, वहां पर भी बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा पीपल वहां पर रहते हैं, कोस्टल एरिया में है, बहुत ज्यादा डेवलप हुए हैं। वहां पर क्लाइमेट हॉट है, ह्यूमिड है, and area also is not so plain over there, not flat. Still people are living there and settle over there because of the good availability of the water and natural resources. So you can see figure 7.3 here. The photo shows the city of Sao Paulo. You can see very high rise building over there, skyscrapers are there, very big buildings are there, you can see, and it is highly developed infrastructure over there. Okay, so see, Sao Paulo has extensive area under rich soil which makes it ideal for growing coffee. So साओ paulo की जो जमीन है, जो सॉइल है, एरिया है, जो इट इज अंडर द रिच सॉइल, मतलब वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है। ओके, बहुत ज्यादा रिच है विथ मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स, एंड इट मेक्स इट आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉफी। तो कॉफी उगाने के लिए ये बहुत अच्छी कंडीशन है सॉइल की। It also has a large supply of natural minerals close by, such as iron ore, and it also has a steady energy supply. तो साओ पोलो सिटी में क्या है, रिच सॉइल है कॉफी के लिए, सप्लाई ऑफ नेचुरल मिनरल्स है लार्ज, आयरन ओर मिलता है वहां पर, जिसके वजह से जिसके इस्तेमाल करके आप स्टील वगैरह बना सकते हैं, मिनरल्स उसमें से निकाल सकते हैं, एंड वाटर एनर्जी जो सप्लाई है वहां पर वो स्टेडी है। ओके, सो द साउथ ईस्टर्न एरिया हैज अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू। तो ये साओ पोलो सिटी का जो साउथ ईस्टर्न एरिया है उसमें गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अवेलेबल है, तो जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बहुत इजी हो जाता है, ट्रांसपोर्ट बहुत इजी हो जाता है। दिस मेक्स द साओ पोलो एरिया अ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। ओके, तो साओ पालो क्या होता है, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। मैंने आपको बताया था न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स में क्या होता है, एक जगह बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते थे, ये जो सारा एरिया आप देख रहे हैं ना, ये व्हाइट व्हाइट व्हाइट, ये क्या है, एक्चुअली ये बिल्डिंग्स है, ये एरिया है जहाँ पर लोग रह रहे हैं, ये बिल्डिंग्स है, ये सिटी जो डेवलप हुई है वो सिटी है। वो आपने गलत आंसर दिया था, आपने दिया था कि साओ पालो की जो 7.2 बी है वो डिस्पर्स्ड है। वो डिस्पर्स है, वो न्यूक्लिएटेड, वो एक न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर है वहां पर एक। ओके, so this is a nucleated settlements. And why it is a nucleated settlements? Because it has good rich soil for the coffee, transport system is good, water supply is there, energy supply is there, mineral are there, natural resources are there, and because of that there is a nucleated settlements, means people coming from all over the country and they are establishing or settling over there. So figure 7.2b, that is the Sao Paulo city, it is the example of nucleated settlement. Okay, so did you understand now why this is nucleated settlement? Okay, okay, yes, yes. So Neetu again corrected herself. Okay, so is it clear to everybody now?
ओके गुड। तो आयरन ओर का मतलब क्या होता है? आप जो स्टील देखते हैं हमारे यहाँ आता है बिल्डिंग बनाने के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वैसा का वैसा वो जमीन में से निकलता नहीं कहीं से। उसके लिए क्या होता है, एक ओर होता है। ओर मतलब क्या? वो जो माइनिंग होती है, खुदाई होती है बहुत ज्यादा, माइनिंग जो होती है, खदानें जो होती है बड़ी बड़ी, वहां से क्या निकलते हैं? कुछ ओर निकलते हैं। ओर मतलब एक सब्सटेंस होता है कि जिसके अंदर वो आयरन होता है, वो स्टील होता है। ओके। तो जब हम उससे बाहर निकलते हैं तो उसको बहुत ज्यादा क्लीन करके, उसके उस पर कुछ प्रक्रिया करके, कुछ प्रोसेस उस पे करते हैं, कुछ रिएक्शंस करते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो उसके बाद उसमें से क्या निकलता है? उसमें से निकलता है आयरन। ओके। तो बेसिकली आयरन ओर मतलब उस ओर से हम आयरन बाहर निकालते हैं और हमारे इस्तेमाल के लिए उससे अच्छा बनाते हैं। इज इट क्लियर अबाउट आयरन ओर? जिस प्रकार आयरन ओर है उस प्रकार एल्यूमिनियम का भी ओर होता है। एल्यूमिनियम के ओर को बॉक्साइट कहते हैं। वो भी खदान में से निकलता है और इंडस्ट्री में आकर उसमें प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस में से एल्यूमिनियम बाहर निकालते हैं। ओके। जो भी आप सोना देखते हैं, चांदी देखते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर है, ये टोटल प्योर फॉर्म में नहीं निकलते। जैसे आप अब देखते हैं ना, उसी फॉर्म में नहीं निकलते, वो ओर के फॉर्म में निकलते हैं। वो इम्प्योर होते हैं। तो उसके से इम्प्योरिटी हम बाहर निकलते हैं और ओनली प्योर प्योर हम प्रोसेस करते हैं। ओके। अभी देखिए, रूरल एरियाज, सी हियर, rural areas such as northeast highlands suffer from extreme droughts, which makes it difficult for practicing agriculture, and hence settlements are sparse here. नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड का जो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट मतलब ब्राजील का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, ओके, तो उस वो जगह पे क्या होता है, वहां पर ड्रॉट बहुत ज्यादा पड़ते हैं। सो देर इज अ ड्रॉट। So northeastern part of the Brazil faces the drought very often, frequently, and because of that, people cannot do agriculture or cannot practice agriculture over there. वहां पर वो खेती बाड़ी नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है। ओके। एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन, आप कोई भी लोग अच्छे जगह पे नहीं जाना चाहेंगे वहां पर जहां पर पानी वगैरह नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं होती। ओके। तो इसलिए वहां पर डिस्पर्स पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बहुत कम है वहां पर। सेटलमेंट्स भी वहां पर बहुत स्पार्स है और डिस्पर्स है। पास मतलब बहुत कम, लेस, एंड डिस्पर्स मतलब जो भी है, दीज आर वेरी डिस्पर्स्ड, दूर दूर है, रहती है। सेटलमेंट्स बिकम स्पार्स एज वी मूव टुवर्ड्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्राजील। तो कोस्टल एरिया से जैसे जैसे हम ब्राजील के अंदर सेंट्रल पार्ट में जाएंगे, ब्राजील के, अभी इंडिया का तो हमने देख लिया, अभी ब्राजील का देख रहे हो। ओके। तो ब्राजील के अंदर जैसे जैसे अंदर के पार्ट में हम जाएंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन स्पार्स हो जाएगी, पॉपुलेशन कम 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 हो जाएगी। सो देर आर मेजर रीजंस फॉर दिस। इसके पीछे कुछ कारण है। तो कारण क्या है उसके पीछे? दिस सेंट्रल पार्ट और सेंट्रल एरिया इज कवर्ड बाय थिक डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। सी फिगर 7.4। ये फिगर 7.4 देखिए, रेन फॉरेस्ट इन अमेजोन रिवर बेसिन। तो यहाँ पर जो आप रेन फॉरेस्ट देख रहे हैं, वहां पर थ्रू आउट एनुअल रेनफॉल होता है। वहां पर हमेशा बारिश होती है। वहां पर कोई भी प्लेन एरिया आपको दिख नहीं रहा, सारे वहां पर फॉरेस्ट है, बहुत डेंस फॉरेस्ट है। और डेंस फॉरेस्ट की वजह से वहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिफिकल्ट होता है। ओके। सो देखिए क्या है, एरिया इज कवर्ड बाय थिक डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। द क्लाइमेट हियर इज अनहेल्दी एंड आउट अनफिट फॉर सेटलमेंट। वहां का क्लाइमेट भी खराब है। लिमिटेशंस ऑन यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते वहां पर, बहुत ज्यादा लिमिटेड लिमिटेड है। पुअर ट्रांसपोर्ट लिंक्स इन द रीजन। और इसकी वजह से ये जो हमेशा
गीला रहता है, बारिश रहती है, रेनफॉल रहता है, क्लाइमेट इज नॉट गुड, नॉट अ वेरी प्लेन एरिया ओवर देयर, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट लिंक जो है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है बहुत पुअर है, इस रीजन में बहुत वीक है। इसकी वजह से सेंट्रल पार्ट में ब्राजील के पॉपुलेशन बहुत स्पार्स है। ओके, सो गाइज ये था ब्राजील के बारे में, ब्राजील के सेटलमेंट के बारे में। पहले तो हमने देखा इंडिया के बारे में, उसके बाद हमने देखा ब्राजील के बारे में। तो मुझे लगता है जो जो कुछ अभी वट एवर वी हैव डिस्कस जस्ट राइट नाउ, इट इज क्लियर टू एवरीबडी। ओके, अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ गया तो आप सबको आना चाहिए। स्पार्स का मतलब समझ आया क्या? डेंस के अपोजिट है स्पार्स। डेंस मतलब बहुत ज्यादा आबादी, भी कैन से बहुत ज्यादा वो खुद, और स्पार्स उसके अपोजिट आहे. मराठीमध्ये त्याला घनदाट आणि विरळ म्हणजे खूप कमी असं आपण म्हणू शकतो. येस, स्पार्स मीन्स लेस पॉप्युलेशन, not just population. We can see yes, no problem Nitu and Dheeraj. Okay, so anybody having any doubt till now? अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया इस पे तो आएगा ना सबको? ओके, तो अगला टॉपिक क्या है अभी देखिए। हाँ देखिए, अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो अर्बनाइजेशन का मतलब कोई बताएगा मुझे? किसी को पता है व्हाट इज अर्बनाइजेशन? ओके, नीतू इज सिंग सिटी। यस, yes, everybody is right. Basically urbanization is a process of development of a village into town, और मराठीमध्ये त्याला शहरीकरण असं म्हटलं जातं. कोई भी शहर होता है ना, तो किसी भी छोटे विलेज या छोटे टाउन का बहुत बड़ा सिटी अगर वो डेवलपमेंट उसका होता है तो वो क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? उसे कहते हैं अर्बनाइजेशन, मतलब शहरीकरण. यस, नागरिकीकरण इज ऑल्सो दी मीनिंग फॉर दिस मराठी वर्ड फॉर दिस. अभी देखेंगे इंडिया में ये जो अर्बनाइजेशन की स्थिति की है वो क्या है, हम देखेंगे सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, हम देखेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन. ओके, इसका मतलब क्या? टोटल पॉपुलेशन जो होती है, अभी देखेंगे हम उसको. द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन. मतलब इंडिया में जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितनी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहती है. ओके, तो उसे उस रेशियो को कहते हैं, परसेंटेज में हम निकल दे उसे कहते हैं लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन. कितने लोग सिटी में रहते. फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की पॉपुलेशन 100 है, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ लीजिए. ओके, और उस 100 करोड़ में से लगभग 25 करोड़ जो लोग हैं वो सिटीज में रहते हैं, लाइक पुणे, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर. ओके, इस प्रकार की सिटी होगी, भोपाल, मध्य प्रदेश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो इस प्रकार की सिटी में 20 ये जो शहर है, जो सिटीज है, ये जो अर्बन एरियाज है उसमें 25 करोड़ पॉपुलेशन रहती है 100 करोड़ में से. तो इसका मतलब आपकी जो अर्बनाइजेशन है वो परसेंटेज में कितना है? वो 25% हो गया, क्योंकि 100 में से 25 करोड़ वहां पर रहते हैं ना. तो इसका मतलब 25% लोग आपकी अर्बन एरिया में रहते हैं और
अर्बनाइजेशन आपका कितना है, 25% है। और ये अर्बनाइजेशन है ना, ये बढ़ता रहता है कंटिन्यूसली, क्योंकि हमें पता है जो सिटीज है वो डेवलप होती रहती है ईयर बाय ईयर। तो वहां पर क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है जॉब्स और बिजनेस के लिए। तो जो विलेज के लोग हैं वो विलेज के लोग भी वहां पर आ जाते हैं। और कभी कभार क्या होता है, कोई विलेज जो होता है वो विलेज ही अपने आप बढ़ता बढ़ता जाता है, डेवलप होता जाता है, उसका भी एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिटी में हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर ग्राफ दिया हुआ है, C1.5 इंडिया, इंडिया का है। और वो क्या है, ट्रेंड इन अर्बनाइजेशन फ्रॉम 1961 टू 2011। मतलब 1961 से लेकर वो 2011, मतलब 50 साल का हार्ड ये डेटा है। तो इस 50 साल के डेटा ईयर में इंडिया का जो अर्बनाइजेशन का पॉपुलेशन वो कैसा बढ़ता गया, अर्बनाइजेशन का जो परसेंटेज है वो कैसे बढ़ता गया। तो यहाँ पर देखेंगे ईयर्स, एक्स एक्सिस जो है वहां पर क्या देखते हैं आप, ईयर्स देखते हैं 1961, 71। और वाई पे क्या है, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। अभी देखिए 1961 में हमारी अर्बन पॉपुलेशन सिर्फ 18% थी, मतलब अर्बनाइजेशन हमारा 18% था। मतलब अगर उस साल हमारी 1961 में हमारी पॉपुलेशन देश की अगर 100 करोड़ होती, फॉर एग्जाम्पल नॉट परफेक्टली, जस्ट फॉर दी योर अंडरस्टैंडिंग, वहां पर उस वक्त हमारी पॉपुलेशन 100 करोड़ होगी, तो उसमें से 18 करोड़ लोग ये अर्बन एरिया में रहते हैं। और वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। देखिए 10 साल में बहुत कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ 71 तक, लेकिन 71 के बाद 81, 91, 2001, 2011, तो 23, 25, 27, 31% तक पॉपुलेशन जो है हमारी वो सिटीज में रहने लगी। अगर हम 2021 का डेटा देखेंगे तो उस डेटा वो 40% तक जा चुका होगा। मतलब 40% हमारी जो पॉपुलेशन हो वो सिटीज में रहती है, वो अर्बन एरियाज में रहती है। ऑलराइट, ओके। वो ग्राफ के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये नीचे आपको देखिए ग्राफ। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन 1961? इट वाज 18. In which decade was urbanization the highest? So 2011, in this area decade, urbanization was higher from 2001 to 2011. Okay. In which decade the growth of urbanization lowest? So growth of urbanization lowest किस ईयर में है? तो देखिए 1961 टू 1971 बहुत थोड़े लोग अर्बनाइजेशन में गए हैं। मतलब ये 18 था, या सिर्फ 18.2 है, आप देख सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं, ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई नहीं, लोएस्ट ग्रोथ है, आप वहां पर देख सकते हैं। व्हाट इन्फ्रेंस कैन यू ड्रॉ रिगार्डिंग इंडिया अर्बनाइजेशन आफ्टर रीडिंग द ग्राफ? तो ये जो ग्राफ है, आप जो पढ़ा आपने, ये जो ट्रेंड देखा आपने अर्बनाइजेशन का इंडिया में, तो इसके बाद आपके दिमाग में क्या आता है कि आपके इंडिया के अर्बनाइजेशन के बारे में आपके दिमाग में क्या आता है? ओके, तो आपके दिमाग में यही आता होगा कि ईयर बाय ईयर, डिकेड बाय डिकेड इंडिया अर्बनाइज हो रहा है। मतलब इंडिया में सिटी की संख्या बढ़ रही है, और बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग इस सिटी एरिया में रहते, टाउन में रहते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस ग्राफ। नाउ सी व्हाई दिस इज सो, व्हाई ऐसा क्यों हुआ है, ये हम सब देखेंगे। सी जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इन सब चीजों के लिए हम देखेंगे अभी। It is clear from above graph that the growth of population in India has been slow. Sorry, growth of urbanization in India has been slow. तो इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं ग्रो अर्बनाइजेशन। मतलब 50 साल हो गए, 50 साल में हम सिर्फ 18 से सिर्फ 31 तक गए हैं। ओके, मतलब दुप्पट भी नहीं, उसके दो 2 टाइम्स भी नहीं हुए हैं। 50 साल लगे हमें 18 से 31% होने के लिए। मतलब ये बहुत ज्यादा नहीं है, आप सब देख सकते हैं हमारी ग्रोथ है स्लो है, अर्बनाइजेशन का रेट जो है स्लो है, ग्रोथ का रेट जो है स्लो है। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2011 was 31.16%, which is quite low in comparison to developed countries. मतलब जो 31 पॉइंट आप 16 देख रहे हैं,
ये बहुत कम है 2021 का, सॉरी 11 का डेटा, अगर हम 11 का डेटा अगर हम देखेंगे तो, मतलब अगर हम यूरोपियन कंट्री, अमेरिका एक्सेट्रा को जो डेवलप कंट्री है उससे कंपेयर करेंगे तो ये डेटा बहुत छोटा है, हमारा बहुत लो है, बहुत कम है। मतलब हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं? रूरल एरिया में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। ओके, एट द सेम टाइम द अर्बन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, expansion of the urban centers and emergence of new towns have played a significant role in the growth of urban population and urbanization in country। मतलब क्या हुआ है अर्बनाइजेशन का? मतलब जो हमारे विलेजेस थे कुछ बड़े बड़े, वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं अर्बन सेंटर्स में, नागरिक केंद्रों में, सिटीज में, टाउन्स में वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं। ओके, एंड उसी की वजह से क्या हुआ है, वो सिटी बन गई। अगर वो पहले विजय विलेज था तो वहाँ की पॉपुलेशन विलेज और रूरल एरिया में रहती थी, लेकिन अब वो टाउन हो गए, सिटी हो गए हैं, अर्बन सेंटर हो गए, तो वहाँ के सारे पीपल जो पॉपुलेशन होगी वो भी अर्बन पॉपुलेशन कही जाएगी। तो इसकी वजह से इंडिया में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। ओके, अर्बनाइजेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग इन द कंट्री। Urbanization has been more in the southern part than in the northern part in India। मतलब इंडिया में जो हमारा साउथ इंडिया है, तो साउथ इंडिया में अर्बनाइजेशन ज्यादा तेजी से हुआ है। ओके, साउथ इंडिया में जो सिटीज है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है, और जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत है, वहां पर बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हुआ नहीं। नाउ सी, गोवा इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट with 62% population living in urban areas। तो हमारा जो गोवा स्टेट है, तो गोवा स्टेट की जो अर्बनाइजेशन परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। मतलब गोवा के 100 में से 62 पीपल जो है, 62 पीपल है, वो अर्बन सेंटर्स में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं। ऑलराइट, दिल्ली इज मोर देन 80% अर्बन। ओके, बट दिल्ली इज नॉट अ स्टेट। ऑलराइट, सो दिल्ली की 80% जो पॉपुलेशन है वो लगभग 80% से ज्यादा अर्बन एरियाज में रहती है। इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, अर्बनाइजेशन इज मोर। अभी ये तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल ये जो है, ये इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है बहुत ज्यादा। वहां पर टेक्नोलॉजिकल सेंटर्स बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से क्या हुआ है, वहाँ की सिटी बहुत ज्यादा ग्रो हुई है, डेवलप हुई है, और वो बहुत ज्यादा अर्बन सेंटर्स वहां पर क्रिएट हो गए। तो इसकी वजह से महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरला में अर्बनाइजेशन ज्यादा है। अभी हिमाचल प्रदेश जो है, जम्मू कश्मीर का एरिया है, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, सो दीज आर सम ऑफ द स्टेट्स विथ लो लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन। तो एक तरफ तो क्या है, बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन वाले स्टेट्स है जो साउदर्न इंडिया में है, बट उसके अपोजिट जो नॉर्दर्न इंडिया में हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, बिहार है, राजस्थान है, वहां पर अर्बनाइजेशन बहुत कम हुआ है। अब इसका कारण क्या क्या हो सकता है? हिमाचल प्रदेश, वहां पर क्या है, वहां पर हिली रीजन है, उत्तराखंड में भी हिली रीजन है, जम्मू कश्मीर में भी हिली रीजन है। लेकिन बिहार, राजस्थान, राजस्थान में तो डेजर्ट है, सो डेजर्ट की वजह से वो कुछ प्रॉब्लम है। और बिहार में, बिहार इज अ पोअर स्टेट। ओके, एंड दैट्स व्हाई urbanization level is very low in Bihar, Rajasthan, and other some states। So guys, did you understand? Yes, okay, your answers I am seeing. Okay, so anybody having any doubt here about urbanization in India? How the trend from 1960 to 2011 is going on there? What are some reasons? Which states are having higher urbanization percentage, which are low? What can be the reason behind this? Okay.
Now see, here is one thing given for your knowledge. The ancient subcontinent, the Indian subcontinent, has a long history since ancient times. मतलब क्या, हमारा जो भारतीय उपखंड है, तो इसमें क्या क्या आता है? भारतीय उपखंड में पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब भारतीय उपखंड में आते हैं। तो ये जो प्लेटो है हमारा, ये जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा, इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है एंशियंट टाइम से। मतलब पुराने, बहुत ज्यादा प्राचीन काल से इसकी हिस्ट्री चली आती है, आई है। सिंस एजेस, मतलब बहुत सालों से, of the population, since ages of the population of this country is living in river basins। मतलब हमारे यहाँ जो रिवर बेसिन है, जो सिंधु रिवर है, उसके बाद गंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत ज्यादा रिवर्स है इंडिया में। तो वो रिवर बेसिन में ये पॉपुलेशन इंडिया में रहती आ रही सिंस एजेस, मतलब सालों पहले, हजारों सालों पहले से। ओके, सो इंडिया की जो सब कॉन्टिनेंट है, इसकी की बड़ी हिस्ट्री रही है, बहुत सालों से यहाँ की पॉपुलेशन है। सो इट इज लिविंग इन द रिवर बेसिन्स, ऑन प्लेटोज एंड माउंटेन्स। मतलब यहाँ के रिवर बेसिन में भी वो लोग रहते आ रहे हैं बहुत सालों से, हजारों सालों से। प्लेटो जो है मतलब पठार, जो प्लेन एरियाज है, बट इलेवेटेड प्लेन एरियाज, वहां पर रहते आते हैं। और माउंटेन्स में पर भी पॉपुलेशन आप देख सकते हैं इंडिया में, और सब कॉन्टिनेंट में देख सकते हैं आप। इंद्रप्रस्थ, दैट इज दिल्ली, मिथिला, वाराणसी, हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, उज्जैन, एंड प्रतिष्ठानम, दैट इज पैठन, वी आर द अर्बन सेटलमेंट्स ऑफ अर्लियर टाइम्स। तो हमने ये जो सिटीज अब तक देखी ना, ये बहुत पुरानी है, ये सालों से, हजारों सालों से ये सिटीज और ये अर्बन सेटलमेंट्स इंडिया में है। दिस शोज दैट इंडिया हैज अ ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ अर्बनाइजेशन। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि इंडिया को सालों से पहले, हजारों सालों से अर्बनाइजेशन की ट्रेडिशन इंडिया में है। अभी अर्बनाइजेशन ऑफ ब्राजील हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, वो जो रिमेनिंग लेसन है वो हम अगले लेक्चर के लिए रखेंगे, क्योंकि इतना जल्दी तो कवर करना कोई सेंस नहीं बनता एक लेक्चर में सब कुछ। ऑलराइट, तो हमने आज क्या क्या देखा? हमने देखा इंडिया का, इंडिया की सेटलमेंट्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स किस प्रकार की है। उसके बाद हमने उसे ब्राजील से कंपेयर किया, ब्राजील की किस प्रकार की है। उसके बाद हमने देखा अर्बनाइजेशन इन इंडिया किस प्रकार का है, कैसा है, क्यों है, किधर है। ओके, ये सब हमने देखा। तो मुझे, ओके, तो किसी को कोई डाउट है इसमें अभी तक? ओके, तो मुझे ये भी बताइए, वो लेसन कैसा रहा, आज का लेक्चर कैसा रहा आप, हमारा अंडरस्टैंडिंग आपको? ओके, अविग्ना पवार, अविग्ना पवार नेवर participates in conversation. Am I audible to her? अविग्ना पवार, आवाज येतोय का? हेलो? Okay, maybe she just joining the lecture, and she is not giving attention like you people. This is not a good sign, guys. All this thing is going on is for you, right? So if you keep the session interactive, then it also
motivates me also, okay, to give some more information, give more knowledge, likewise this. Okay, so I hope for today it is over. अगर किसी को कोई रीडिंग के बाद अभी ये रिवाइज करना है आपको सभी को, राइट? तो रिवाइज करते वक्त अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप यू कैन आस्क मी द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो, एज यूजुअल, हमेशा की तरह। और अभी आप लेक्चर को छोड़ सकते हैं, यू कैन लीव द क्लास नाउ। So goodbye, good night, and take care. See you in the next lecture.